हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले एटम एंड आयन के साइज को डिस्कस करेंगे। एटम एंड आयन की रेडियाई क्या होती है। जनरली अगर हम साधारण तरीके से बात करें तो जो आपके एटम का न्यूक्लियस होता है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक की जो डिस्टेंस होती है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस up to the outermost orbit of an atom is called as atomic radius or atomic radii, and this can be vary from nature of bonding such as covalent nature, ionic nature and metallic nature. In the case of covalent nature, this is called as covalent radii. In the case of ionic crystal, this is called as crystal radius, and in the case of van der Waals cases, it is called as van der Waals radii, and in the case of metals, it is called as metallic radius. So we will define from one by one. Now first of all we will discuss the covalent radius. You know that a covalent bond is formed by the sharing of electrons between two atoms. When the bond is formed between the same molecule, this is hydrogen molecule or HCl molecule. This is non-similar molecule. Similar way, covalent radii may be defined as the distance between the two nuclei of bonded atom. The distance from the centers of nuclei of both the covalently bonded atoms is called as covalent radii. In the case of heteronuclear molecule such as AB molecule, the bond length may be measured by measuring the distance of nucleus from the second nuclei distance, or you can say that the bond length will be equal to the covalent radius of both the atoms. So it is an additive property. So the covalent bonding, a covalent radius is an additive property because the covalent radii, the radius determines the bond length or bond distance between two atoms. So it is an additive property. Now we will talk about the characteristic of covalent radii. There are some characteristics on which the covalent radii depends. For example, single bond or double bond or triple bond. The covalent radii depends upon the nature of bond, whether it will be a single bond, double bond or the triple bond. As we know, the covalent bond compound such as of carbon forms three types of bond: single bond, double bond, triple bond. The distance or the covalent radius of triple bond will be minimum, and the covalent radius of single bonded atom will be maximum.
We can write as covalent radii. Single bond greater than double bond greater than triple bond. In this way, we can define the bond length and bond and covalent radii on the basis of multiplicity of bond. This is called as multiplicity of bond. इस तरीके से ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पर निर्भर करता है. एंड द सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियाई इज एडिटिव इन नेचर. द सिंगल बॉन्ड रेडियाई इज एडिटिव इन नेचर. जो सिंगल बॉन्ड की रेडियाई होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है क्योंकि वो ऐड हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है द कोवलेंट रेडियाई इज लेस देन वान डेर वाल्स रेडियाई. And next one is the covalent radii depends upon the nature of the geometry of the products. That is, कोवलेंट रेडियाई इज लेस देन वैन डर वाल्स रेडियाई. कोवलेंट रेडियाई जो साइज होता है वो कम होता है, वैन डर वाल्स रेडियाई का साइज ज्यादा होता है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वैन डर वाल्स बॉन्ड से. नेक्स्ट इज दैट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है कोवलेंट बॉन्डिंग के बाद, ये उसकी ज्योमेट्री पर भी निर्भर करती है. जैसे वो टेट्राहेड्रल है, फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लानर. ये इन फैक्टर्स पर कोवलेंट रेडियाई निर्भर करती है. नाउ द सेकंड वन इज द क्रिस्टल रेडियस और द मेटालिक रेडियस. It is one half of the distance between two adjacent metal atoms in the metallic crystal, which shows the coordination number 12. Once more, metallic or the crystal radius is one half of the two bonded adjacent metal atoms, which shows the metallic crystal having coordination number 12. This is called as metallic or crystal radius. It is greater than van der Waals radii. It is greater than van der Waals radii, so it is weaker than van der Waals bond, because ये जो मेटल के बीच में बॉन्ड होता है, मेटालिक रेडियस होती है वो ज्यादा होती है और जो बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है. इसीलिए यहाँ पर ये van der Waals बॉन्ड से भी वीक हो जाता है. और चूंकि मेटल के अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इजीली दे देता है
और बहुत जल्दी से बॉन्ड बना लेता है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर भी ये बॉन्ड बना लेता है। मेटालिक रेडियस, बाकी सब जितनी आपकी रेडियाई होती है, कोवलेंट रेडियाई, वान डेर वाल्स रेडियाई एंड द आयनिक रेडियाई, उन तीनों से जस्ट डिफरेंट होती है। दोनों में किसी भी प्रकार की कोई सिमिलरिटी नहीं होती है। ये वीक बॉन्डिंग फोर्सेस इनमें होते हैं, जो मेटल के बीच में होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, और इसीलिए रेडियाई वान डेर वाल्स रेडियाई से बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। नाउ द थर्ड वन इज द वान डेर वाल्स रेडियाई। वान डेर वाल्स रेडियाई the distance between two non-bonded atoms or molecules is called as van der Waals distance, and one half of this distance is called as van der Waals radii. van der Waals radii कोवलेंट रेडियाई से ज्यादा होती है, इसलिए van der Waals फोर्सेस वीक फोर्सेस होते हैं। van der Waals बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है इन कंपैरिजन टू कोवलेंट रेडियाई। जितनी ज्यादा van der Waals रेडियाई होती है उसी हिसाब से बॉन्ड उतना ही वीक हो जाता है। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं। न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में जब क्लोज आते हैं तो उनके बीच जो अट्रैक्टिव बॉन्ड बनता है, उन दोनों के बीच बॉन्ड बनने वाला van der Waals बॉन्ड होता है, और उसकी हाफ डिस्टेंस को, उस बॉन्ड की डिस्टेंस के हाफ को यदि हम कैलकुलेट करें, दैट इज कॉल्ड एज van der Waals रेडियाई। van der Waals रेडियाई में एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में पास आ जाते हैं और वो एक फोर्स के द्वारा जुड़ जाते हैं, जिसके कारण ये van der Waals फोर्स उनको बांधे रखते हैं और वो van der Waals बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन van der Waals बॉन्डिंग में किसी भी प्रकार की ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एटमों की ऑर्बिटल्स में मिक्सिंग नहीं होती। ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आती, केवल दो न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही आपस में कांटेक्ट में आते हैं। नाउ द लास्ट वन इज द आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई, ionic radii is very important in measuring various types of ions position and their bonding. The ionic radii may be defined as the distance from the center of the nucleus up to where the ion has its influence. For example, ये आपके पास में आयन है। पहले हम अगर एटम की बात करें तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां पर हम एटम के केस में ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस के नाम से जानते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या थी? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम वेयर द इलेक्ट्रॉन्स लाई। बट इन केस ऑफ आयन, यदि आयन के बारे में बात करें तो आयन की कोई आउटर ऑर्बिट तो जो होती है वो अपने स्थान पर नहीं होती है। जब आयन बन जाता है तो उसकी ऑर्बिट या तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है या एक्सपेंड कर जाती है, ड्यू टू विच उसकी जो एक्चुअल ऑर्बिट जहां पर थी उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिमिलर वे में हम आयन को डिफाइन करते हैं कि किसी आयन का इफेक्ट, किसी आयन का जो प्रभाव जहां तक रहता है वो उसकी आयनिक रेडियाई कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अप टू वेयर द आयन हैज इट्स इन्फ्लुएंस, दैट इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। जैसे अब यहाँ पे ये एटम के बाद में ये एक आयन फॉर्म हो जाता है, ये आयन बन गया। आयन के बाद में सपोज ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन के बाद यहाँ पर अब इसका जो इफेक्ट होगा वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इस सेंटर से लेके जहां तक की डिस्टेंस, जहां तक इसका इफेक्ट जाता है वो आयनिक रेडियस कहलाती है। और ये भी एडिटिव इन नेचर होती है, क्योंकि यहाँ पर जब दो आयन के बीच में आप निकालते हैं, जब दो आयन के बीच में बॉन्डिंग निकालते हैं तो वो ऐड करके आप निकालते हैं, दोनों की एटॉमिक रेडियाई को ऐड कर दिया जाता है। जब वो दोनों की आयनियाई को ऐड किया जाता है
तो आप टोटल रेडियाई उस आयनिक क्रिस्टल में निकालते हैं, जिसके कारण ये एडिटिव इन नेचर होती है। अब इसके बाद आता है कि किन फैक्टर्स पर हमारी ये रेडियाई डिपेंड करती है और इनके किस प्रकार से वेरिएशन होते हैं और कहाँ पर यहाँ पर ये रेडियाई कम होगी, कहाँ पर ज्यादा होगी, आयन बनने पर, कैटायन बनने पर क्या होगा, आयनायन बनने पर क्या होगा, न्यूट्रल फॉर्म में क्या होगा, और हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं तो किस प्रकार से होंगी। जैसा आपके पास में फॉर एग्जाम्पल सोडियम और सोडियम आयन है, तो सोडियम बड़ा होगा कि सोडियम आयन बड़ा होगा। क्लोराइड है और क्लोराइड आयन है, क्लोरीन है और क्लोराइड आयन है, दोनों में कौन बड़ा होगा। यदि Fe है और Fe2 है, Fe2 प्लस है और Fe3 प्लस है, इनमें कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, कौन इंटरमीडिएट स्टेज में आएगा। तो ये सब हम कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे किस प्रकार से ये वेरी करती है। उसके लिए आप सेकंड वीडियो देखिए, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा।